Hello everyone, and this is Vikas Dubey. So students, today I'm going to discuss with you all the chapter arithmetic progression. So students, in this session I will discuss all the questions in which you are facing problems. So your doubts are my priority season arithmetic progression one shot class 10th. So let us start. I will discuss the concept of arithmetic progression, all the important formulas and all the important questions, previous year questions, and all the most important highly expected questions in this series. So students, let us discuss that what is the arithmetic progression. So students, an arithmetic progression is a sequence. It is a sequence. It is a sequence of numbers where the differences between every two consecutive terms are the same. In this progression, each term except the first term is obtained by adding a fixed number to its previous term. This fixed number is known as the common difference and it is denoted by D. The first term of an arithmetic progression is usually denoted by A or A1. So देखिए, एक्चुअल में एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, जैसे मैं लूं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो इसमें ये पहला जो नंबर है 1, हर नंबर में 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ऐड करने पर हमको 1 में अगर 1 ऐड किया तो 2 मिला, 2 में अगर 1 ऐड किया तो 3 मिला, 3 में 1 ऐड किया तो 4 मिला, 4 में 1 ऐड किया 5 मिला एंड सो ऑन. तो इस तरीके की जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्यों? क्योंकि इसमें हर टर्म अपने प्रीसीडिंग वाले टर्म के साथ सेम डिफरेंस दे रहा है. ओके, तो 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1. This difference is known as the common difference. This first number at the position of the first term that will be represented by A or A1. ओके, तो यूजुअली जो AP है उसको हम कैसे लिखते हैं? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, है ना, क्योंकि एक ऐसा फिक्स नंबर है जो इन सभी टर्म्स में ऐड होता चला जा रहा है और सीक्वेंस को इंक्रीज करता चला जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 1 5 9 13 17 21 25 29 33. It is an arithmetic progression as the difference between every two consecutive terms are the same as 4, like 5 - 1 4, 9 - 5 4, 13 - 9 4, 17 - 13 4, 21 - 17 4 and so on. So we are getting the difference 4. This difference 4 is the common difference of the AP. Okay, so we can also notice that every term except the first term of this AP is obtained by adding 4 to its previous term. 1 को छोड़ करके बाकी जो इसके टर्म्स हैं वो सभी टर्म्स 4 ऐड करने के बाद हमको मिल रहे हैं. ठीक है, अच्छा, इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A is equal to 1 and D is equal to 4. So let us move. कैसे हम लोग AP को, जैसे अगर हमको AP के टर्म्स को लिखना है तो फर्स्ट टर्म that will be A, second term will be A plus D, third term will be A plus 2D, fourth term will be A plus 3D. In the same way, अगर हम AP का nth term लिखें तो we can write AN is equal to A plus N minus 1 D. I hope you are understanding. Okay, तो nth term of the AP उसको हम लिख सकते हैं AN और TN, है ना. NCERT और RS अग्रवाल या RD शर्मा सभी बुक में किसी में AN मिलेगा, किसी में TN मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है. आगे बढ़ते हैं. देखिए, इस चैप्टर में यूज होने वाले ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. जैसे nth टर्म ऑफ द AP अगर हमको फाइंड करना हो तो वी विल अप्लाई AN is equal to A plus N minus 1 D. अगर हमको इंड से फाइंड करना है, लेट अस से वी हैव एन AP 5 10 15 20 एंड सो ऑन. ठीक है ना. इसमें अगर हमको कहे कि फाइंड 15th टर्म ऑफ द AP, फाइंड 15th टर्म ऑफ द AP, तो अगर हमको 15th टर्म फाइंड करना है, इट मींस इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज A15 is equal to A plus N minus 1 D.
Okay, so A is the first term of the AP, that is 5 here. So 5 plus N will be 15 because you have to find 15th term of the AP. So 15 minus 1 and D is the common difference. How you are going to calculate common difference? D is equal to second term A2 minus A1. So that is 10 minus 5. 10 minus 5 आपको 5 दे देगा. So this will be 5. So your answer will be 5 plus 15 minus 1, 14. 14 5 is 70. So 5 plus 70 is equal to 75. Okay. So 15th term of the given AP will be 75. Now you have, if let us say, if you have one more AP and that is 7, okay, 14, 21 and so on, 147. Let us say this is 147. अब इसमें आपको फिफ्थ टर्म, यू हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. यू हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी, एंड ऑफ द एपी. तो इसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे. ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू A5 is equal to L. L is the last term. Last term is 147. So 147 minus N minus 1D. Which term you have to find? Fifth. So 5 minus 1 into D. D is the common difference. What is common difference of this AP? That is 14 minus 7 is equal to 7. So you would have to write 7. Now this will be 147 minus 4 7 is 28. Therefore 7 minus 17 minus 8, that is 9, 3 minus 2, 1 and 1, 119. Fifth term from the end of the AP will be 119. So this is the use of these two formulas. Now let us move to next question. Next formula. Next formula will be used to find the sum. नेक्स्ट फार्मूला जो होगा उसको हम सम फाइंड करने के लिए यूज करने वाले हैं. ओके, तो sum of n terms of an AP. Sum of n terms of an AP. Sum of n terms of an AP will be calculated using this formula. Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d. इसको कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, दैट इज Sn is equal to n by 2 a plus l, है ना. What is l here? L is the last term, a is the first term. ये दोनों कब और किस कंडीशन में यूज किए जाते हैं मैं आपको बता देता हूं. जैसे आपके पास कोई एपी दे दिया है, ठीक है, कोई एपी दे दिया है जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और आपसे कहिए कैसा सीरीज होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट टर्म पता नहीं है. आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, है ना, क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स. अब देखिए इसमें आपको 20 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है. तो 20 टर्म्स तक का सम मींस S20. क्या निकालना है? S20. यहां पर फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और n हो जाएगा 20. तो फार्मूला आप ये अप्लाई करेंगे यहां पर, ठीक है. Sn इज इक्वल टू n by 2 मीन्स 20 by 2 and 2 into a, that is 2 plus n is 20 minus 1 into d is 2. Common difference is 2. Therefore what you will get? You will get 20 divided by 2 is 10 and 2 2s are 4 and plus 19 2s are 38. क्या मिलेगा आपको? 10 into 42 is equal to 420. So this is going to be your answer. यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर हमको लास्ट टर्म एपी का ना पता हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? गिवन नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए वी विल अप्लाई दिस फार्मूला. नाउ लेट अस से वी हैव अनदर 5 10 15 20 and so on 500, है ना. Let us say this is 500 and you have to calculate sum of the terms of the given AP. अब इसमें हमको ये तो पता ही नहीं है ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 5 है,
मल्टीपल ऑफ 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें हमको पता नहीं कैसे कितने मल्टीपल्स है 5 के इसमें, है ना। तो यू वुड हैव टू कैलकुलेट n फर्स्ट। पहले आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो हाउ वुड यू फाइंड, यूजिंग फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर ये an क्या होगा, दिस इज द nth term or the last term of the AP, that is 500 is equal to a is 5 here, you will substitute 5, n minus 1 d is 5, d is also 5, 10 minus 5 is equal to 5. Okay, so calculate it, 500 minus 5 is equal to n minus 1 into 5, ये क्या हो जाएगा 495 is equal to n minus 1 into 5, इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 5 9 जा 45 and then 5 9 जा, this will be 99 is equal to n minus 1, तो n is equal to 100। मतलब ऐसे कितने नंबर है यहाँ पर, ऐसे कितने नंबर है 100 नंबर्स हैं, देयर आर 100 नंबर्स। तो उनका हमें सम अगर निकालना है तो s100 इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 100/2 a मीन्स 5 एंड l लास्ट टर्म इज 500, so therefore this will be equal to 50 into 505, 50 into 505। तो कैलकुलेशन में एक जीरो लग गया, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, 25,250, दिस विल बी योर सम। यही आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया कि अभी तक हमने जो फार्मूले पढ़े उस फार्मूले का यूज हम किस तरीके से करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला जो फार्मूला आता है वो फार्मूला है टू फाइंड nth टर्म व्हेन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP इज गिवन, ठीक है। जब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP गिवन होगा, इन दैट कंडीशन हाउ वुड यू कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ द AP, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि आपको डायरेक्ट दे देता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP इज गिवन बाय 1/2 n स्क्वायर प्लस n, ऐसे करके दे दिया, है ना। तो आपको प्रॉब्लम होती है उसमें अगर कह दे कि nth टर्म निकालिए, nth टर्म क्या होगा, है ना, बिकॉज इट हैव बीन गिवन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP इज गिवन इन द फॉर्म 1/2 n स्क्वायर प्लस n। इसका nth टर्म में आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फार्मूला क्या है, टू गेट द nth टर्म वी यूज फार्मूला Sn माइनस Sn माइनस 1। ये Sn जो गिवन है, ये Sn माइनस 1 कहां से आएगा ये भी आपको बता देता हूं। Sn माइनस 1 कुछ कहीं अलग से नहीं आएगा, यही जो n दिया हुआ है हम उसमें रिप्लेस कर देंगे n माइनस 1 इन प्लेस ऑफ n, है ना। जहां भी n दिखेगा इसमें उसकी जगह हम n माइनस 1 लगा देंगे। अच्छा, इसका एक और मैं आपको बता देता हूं, इन केस अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो आपको ये समझना है कि इसमें जो पहले सम ऑफ वन टर्म निकाल लीजिए, उसके लिए हम क्या करेंगे 1 रखेंगे प्लस 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 1 जा 2 1 3 3/2। फिर निकालिए S2, निकालिए S2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी की जगह हम 2 रख देंगे, ठीक है, 2 रख देंगे, जहां पर हमारा n है वहां पर 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 होगा, 4/2 2, 2 + 2 4, यह आ जाएगा 4। अब आप देखिए, फिर आप S3 निकाल लीजिएगा। S3 के लिए आप क्या करिएगा 1/2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3, जहां भी n है वहां 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9/2 प्लस 3, दिस विल बी इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 + 9 15, 15/2। अब स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये क्या है, ये सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म्स है ना। दिस इज नॉट फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। इसको निकालने के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, A1 और S1 दोनों सेम रहेगा हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि अब 1 को ऐड करो तो 1 ही तो रहेगा ना, फर्स्ट टर्म एक सिंगल टर्म है उसी को ऐड करोगे वही सेम नंबर रहेगा। A2 निकालना है तो A2 के लिए आप S2 माइनस S1 कर देंगे, S2 माइनस S1 मीन टू से 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 3 5, 5/2।
फिर आप निकालेंगे A3 निकालने के लिए आप S3 माइनस S2 करेंगे। S3 माइनस S2 मतलब ये आपका है 15/2 माइनस 4, ओके, -4। तो दिस विल बी इक्वल टू 15 माइनस 8/2 दैट इज इक्वल टू 7/2। तो आपको A1 A2 A3 मिल गया। इसी तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद अनदर टर्म ऑफ द AP निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आपको ये फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है, आप इस तरीके से कर लीजिएगा, हेजिटेट मत होइएगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आप इधर उधर नर्वस हुए, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। लेट अस मूव फर्दर, आगे देखते हैं क्या करना है। अब ये तो था कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं इस एपी में। उसके बाद एपी का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म है। फिर आपको सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फार्मूले यूज करने हैं, आइडेंटिफाई करना है कौन सा फार्मूला यूज करें और कैसे इसको सॉल्व करें, है ना, दैट्स ऑल। बस उसके बाद और कुछ नहीं है। इसमें देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं ना, जिसमें कि बोलता है 3 नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर्स आर इन एपी, 5 नंबर्स आर इन एपी। तो 5 नंबर्स तो नहीं पूछता है, बट 3 नंबर एंड 4 नंबर का पूछता है। तो इसमें ना एक आपके RS अग्रवाल में कंडीशन दिया हुआ है कि इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू चूज 3 numbers in AP, 3 numbers in AP as 3 numbers अगर आपको AP में पूछे तो आप उसको ये कंसीडर करेंगे A माइनस डी, A प्लस डी। अगर आपको कहता है 4 numbers in AP, 4 numbers in AP, 4 numbers in AP. So in such situation, students, you have to choose A minus 3D, A minus D, A प्लस डी एंड A प्लस 3D। ये आपको चूज करना हमेशा, ठीक है, कन्वीनियंट रहेगा, तभी आप आंसर तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। चलिए, तो इसको जरूर मेक दिस पॉइंट, है ना, यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट, इसको जरूर आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। एंड स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं कुछ तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस है ना जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, कोई 1 मार्क में, कोई 2 मार्क में, कोई 3 मार्क में, है ना, इवन 5 मार्क के भी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर रखा है, उसको आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। इवन आपके पास अब आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपको ये तो पता है किस किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि वो सारे क्वेश्चन, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए इसी वीडियो में, है ना। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। चलिए देखो, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3, देन व्हाट इज A15 माइनस A9? कॉमन डिफरेंस इज गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, करेक्ट, कॉमन डिफरेंस इज गिवन दैट इज 3, देन व्हाट इज A15 माइनस A9? कभी कभी एमसीक्यू में दे देता है, कभी कभी 2 मार्क में दे देता है। तो A15 माइनस A9 इसकी वैल्यू निकालनी है। A15 मीन्स 15th term of the AP, तो 15th term of the AP will be equal to A plus 14D minus A 9th term will be A plus 8D. Now simplify this, A plus 14D minus A minus 8D, A will be cancelled with A, 14 minus 8D is equal to 6D, so 6 into D is 3, that is equal to 18. So this will be answer of first question. Second question is, for what value of k will the consecutive terms form an AP? ये देखिए ये कर रहा है 3 consecutive terms है AP के, ये ठीक है, ये AP फॉर्म करेंगे for what value of k। तो अगर ये AP फॉर्म करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड का फर्स्ट के साथ और थर्ड का सेकेंड के साथ जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस विल बी सेम। तो हम लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2 ओके इज इक्वल टू A2 माइनस A1 रख देते हैं। A3 कितना है 5k माइनस 1 माइनस A2 कितना है 3k प्लस 3। स्टूडेंट्स बता दूं ये सब आने वाले क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क में आए 2 मार्क में आए, बट आने वाले हैं, आते हैं, ठीक है।
3k प्लस 3 एंड माइनस उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2k प्लस 1। ब्रैकेट जरूर अप्लाई करिए आप जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। 5k माइनस 1, ओके, 3k प्लस 3, 3k plus 3 minus 2k plus 1. So this will be equal to 5k minus 1 minus 3k minus 3 is equal to 3k plus 3 and minus 2k minus 1. अब देखो इसमें सॉल्व कर लो इसको। 5 माइनस 3k कितना हो गया? 2k हो गया, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 and 3k minus 2k is k and 3 minus 1 is 2. So 2k minus k के उधर k को इधर लाओ एंड 2 माइनस इधर गया, ये 4 माइनस 4 उधर गया, प्लस 4, तो ये 6 हो गया। k इज इक्वल टू 6, तो वैल्यू ऑफ k इज 6। इफ यू वांट टू चेक योर आंसर यू कैन जस्ट चेक इट इमीडिएटली, ठीक है। 6 2 जा 12, 12 1 13 एंड 6 3 जा 18 एंड 3 21 एंड 5 6 जा 30 माइनस 1 29। देखो क्या ये एपी में है? बिल्कुल एपी में है। व्हाई? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 8. Common difference is 8. Okay, let us move further now. आगे बढ़ते हैं। AP is 121। क्वेश्चन में AP है 121, 117, 113 and so on. करेक्ट, which is its first negative term. अच्छा, निगेटिव टर्म होगा, मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। कहीं ना कहीं जाकर के निगेटिव टर्म मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 121, 117 ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो डिक्रीज करते 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 ये क्या होगा? ऐसे पोजीशन पर पहुंचेगा जहां पर निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म आपको मिल जाएगा। तो हमें पता है भाई, अब वो फर्स्ट निगेटिव टर्म nth टर्म हो सकता है क्योंकि हमें टर्म तो पार्टिकुलर पता नहीं है। तो लेट दैट टर्म बी an एंड इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि लेट an इज लेस देन 0, ठीक है ना? मींस लेट an बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म, let an be the first negative term, फर्स्ट निगेटिव टर्म an होगा, ठीक है, मान लेते हैं। तो सच दैट इसमें जो an होगा वो क्या होगा? लेस देन 0 होगा। और an हम क्या अप्लाई करेंगे? a प्लस n माइनस 1d इज लेस देन 0। अब इसमें फर्स्ट टर्म आपका क्या है? दैट इज 121 एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस हियर? 117 माइनस 121 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। इसको यहां पर रखिए फर्स्ट टर्म 117 प्लस n माइनस 1 d विल बी माइनस 4 लेस देन 0। यहां से ये क्या हो जाएगा? 117 माइनस 4n एंड प्लस 4 इज लेस देन 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे 121 माइनस 4n लेस देन 0। देखिए ये इनइक्वालिटी लग जाती है यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 4n ऐड कर देंगे, ये 4n से 4n कैंसिल। अब जो आपकी इनइक्वालिटी हुई, देखिए एरो किस तरफ जा रहा है? ये किस तरफ ओपन हो रहा है? 4n की तरफ। तो 4n ग्रेटर है ना, मतलब ये देखिए इधर ग्रेटर, ये पार्टिकुलर क्वांटिटी जो है वो इससे ग्रेटर है क्योंकि ये तो गया, ठीक है। तो 4n इज ग्रेटर देन 121। अब आप n इज ग्रेटर देन 121 बाई 4, इसको जरा सा आप कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो 4 कितना? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 ये हो गया 0 0। तो 30 होल ये आपका क्या आएगा? ये आएगा n इज ग्रेटर देन 30 होल 1 बाई 4। देखिए 30 होल 1 बाई 4, तो 30 होल 1 बाई 4 मतलब 30th टर्म से जस्ट ग्रेटर वाला टर्म कौन सा होगा? 31st टर्म होगा। कौन सा? 31st टर्म। तो n इज इक्वल टू 31 है ना। 31st टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन AP, ठीक है। सो योर आंसर विल बी, सो 31st term of given AP is the first negative term, is the first negative term of given AP, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। चेक करके देखना है तो चेक करके देख भी सकते हो, चेक करके देख सकते हो, ठीक है। चेक करिए, देखिए 31st टर्म है ना, 31st टर्म ऑफ द गिवन AP। तो A31 दैट इज इक्वल टू A प्लस 30D
ए कितना है, दैट इज 117 प्लस 30 इंटू 30 इंटू -4 रख दीजिए तो कितना मिलेगा 117 और माइनस कितना हो गया 120, तो दैट इज इक्वल टू -3, है ना। फर्स्ट निगेटिव टर्म 31st टर्म ये क्या आ गया, आप 30th टर्म निकालेंगे दूसरा आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 30th करेंगे ना तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। फर्स्ट निगेटिव टर्म इज -3, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एपी में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज, देखिए वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको फार्मूला दिखाया था। फार्मूला मैंने क्या दिखाया था, कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ द एपी, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स मतलब sm दिया हुआ, sm दिया हुआ है, ये कितना है 2m स्क्वायर प्लस 3m दिया हुआ है। देन व्हाट इज इट्स सेकेंड टर्म, व्हाट इज इट्स सेकेंड टर्म। तो कोई बात नहीं, हम पहले तो sm-1 निकालते हैं। sm-1 कैसे निकालेंगे, m की जगह m-1 स्क्वायर रख देते हैं। ये देखिए 3m-1, जहां पर m था वहां पर हमने क्या रख दिया, m-1 रख दिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बी m स्क्वायर प्लस 1 एंड -2m, okay, plus 3m minus 3, this will be equal to 2m square plus 2 minus 4m plus 3m and -3, okay. Further this will be 2m square and -4 plus 3 is -m and 2 minus 3 that is -1। ये आ गया आपका कितना sm-1। तो आप सबसे पहले इसका mth टर्म निकाल लीजिए, am निकाल लीजिए, है ना। कौन सा फार्मूला, an इज इक्वल टू SN-1 हम अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर mth टर्म का सम ऑफ m टर्म्स दिया है, तो हम यहाँ पर फार्मूले में n की जगह m लगा देंगे, कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम रख देंगे sm, m रखिए तो कितना है 2m स्क्वायर प्लस 3m एंड माइनस sm दैट इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस m-1, this will be equal to 2m square plus 3m and minus 2m square plus m and plus 1, okay। ये कैंसिल हो गया, 3m plus m that is 4m plus 1, this is the mth term, this is the mth term। आपको कौन सा टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म ऑफ द एपी निकालना है। तो a2 जो आपका आएगा वो 4 इंटू m की जगह 2 रख दो, that will be equal to 9, 4 2 8 1 9, ठीक है। This will be your answer and this is the way how you can solve this question. I hope you understood the concept behind this question. Next question is if 7 times, next question is if 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times the 11th term, then what will be its 18th term। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 18th टर्म एपी का क्या होता है ना। 18th टर्म एपी का क्या होगा, 18th टर्म ऑफ द एपी विल बी a plus 17d, यू नो इट वेरी वेल। अच्छा, सोल्यूशन में इसमें गिवन क्या है, कह रहा है कि इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, ओके, देन व्हाट विल बी 18th टर्म। सॉल्व कर लेते हैं। 7 टाइम्स 7 टर्म, 7 टर्म ऑफ द एपी विल बी a plus 6d। अच्छा, 11th टर्म विल बी a plus 10d। थोड़ा इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 7a plus 42d is equal to 11a plus 110d, ओके। 11 10 110d। थोड़ा इसको सॉल्व करिए, आगे सॉल्व करिए। 7a minus 11a, this will be equal to 110d minus 42d, क्या हो जाएगा, this will be minus 4a and this will be equal to 8 and 10 minus 4 is 6, 68d। अच्छा, a is equal to ये 68 अपॉन माइनस ये 4 कर दीजिए, d हो गया, काट दीजिए, कितना हो गया 4 1 जा 4, कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक है 2 से काट, ठीक है 2 से तो काटिए, कोई दिक्कत नहीं है।
2 से काटिए, 2 3 जा 6 हो गया एंड 2 4 जा 8, ओ माय गॉड 17 4 जा कटेगा, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया सीधे सीधे -17d, ए की जगह कितना हो गया -17d हो गया। तो आप देखो ना 18th टर्म एपी का जो आया वो a + 17d है, a की जगह -17d रख दीजिए और +17d, 18th टर्म ऑफ द गिवन AP विल बी इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, ओके, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ इन एन AP if sum of 5 terms, क्या दिया हुआ देखिए, S5 + S7, S5 + S7, S5 + S7 is equal to 167 and sum of 10 terms is 235, then find the AP where Sn denotes the sum of its first n terms। अच्छा ठीक है, AP फाइंड करनी है, AP फाइंड करनी है। सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखिए, सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स प्लस सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 167। सॉल्व करिए जरा, तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, हाँ ये यूज करेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 2a प्लस 5-1d, पहला हो गया S5 की जगह, S7 लगाइए, S7 7/2 2a प्लस 7-1d, ये भी हो गया सम 167। थोड़ा और आगे इसको सॉल्व करिए, तो 5/2 ये हो जाएगा 2a प्लस 4d एंड प्लस 7/2 2a प्लस 6d, अच्छा 167। इसको और आगे सॉल्व करेंगे ना, देखिए आप क्या करेंगे 5/2 2 यहां से कॉमन लीजिए, a प्लस 2d बचा, प्लस 7/2 यहां से भी 2 कॉमन लीजिए, a प्लस 3d बचा, इज इक्वल टू 167। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में करते हैं, अदरवाइज इट विल टेक टाइम। 5 × a 5a प्लस 5 2 10d, ओके, प्लस 7a प्लस 7 3 21d इज इक्वल टू 167। दिस विल बी 5 + 7 12a plus 21 and 10 31d is equal to 167। let us say this is equation number 1, इसको equation number 1 consider करेंगे। now what you have to do, now अब आप क्या करेंगे इसको, ठीक है, बाकी आगे फाइंड करिए। सेकेंड इक्वेशन बनाइए, सेकेंड इक्वेशन कहां से बनेगा, S10 से बनेगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है, S10 is equal to 235, तो दिस इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10-1d, ओके, इज इक्वल टू 235। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 5 हो गया, तो 5 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 235। इसको यहीं से कैंसिल कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन हमारे पास है, वी हैव दिस टू इक्वेशंस एंड वी हैव टू सॉल्व देम। इसमें आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। वेरिएबल ए को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, वेरिएबल ए को जो ए है इसमें उसके कोफिशिएंट को सेम बना लीजिए बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। तो 12a प्लस 9 6 जा 54d एंड इज इक्वल टू 6 7 जा 42 एंड 6 4 जा 24 प्लस 4 28, ओके, ठीक है, आई होप इट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखिए, 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। जरा से इसको सॉल्व करिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा ना सबट्रैक्ट करने के बाद। इसको सॉल्व करिए, 4 - 1 कितना 3, 5 - 3 कितना 2 23d। इसको सॉल्व करेंगे 12 - 7 दैट विल बी इक्वल टू 5, 7 - 6 इज इक्वल टू 1 115। d इज इक्वल टू 115/23, ठीक है। 23 करेंगे तो ये कटेगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स आएगा, ठीक है ना, दिस विल बी 5 टाइम्स। तो d की वैल्यू आ गई कितनी, 5 आ गई। d की वैल्यू आ गई तो इसको रख दो किसमें, किसी एक इक्वेशन में। तो 2a प्लस 9 × d, d आ गया है 5 इक्वल टू 47।
तो 2a is equal to 47 minus 45, this will be equal to 2 and a is equal to 2 से 2 कैंसिल 1, a की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू आ गई 5. सो रिक्वायर्ड एपी, जो रिक्वायर्ड एपी होगा, रिक्वायर्ड एपी आप यहां निकाल लीजिए. रिक्वायर्ड एपी आपका a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन. तो रख दीजिए 1, 1 प्लस 5, 1 प्लस 2 इंटू 5 एंड सो ऑन. सो एपी आपका हुआ कितना, 1 प्लस 6 एंड प्लस 11 एंड सो ऑन. दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड. देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये कंडीशन है, ऐसा बेसिक में भी आता है, स्टैंडर्ड में भी आता है, ठीक है. 3 मार्क के क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना. सो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल. लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, in an AP, the first term is -4. The first term is -4 and the last term is 29 and the sum of all its terms is 150. Find its common difference. ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Solution देखिए कैसे करेंगे. Let us see the solution. In an AP, the first term is A is -4 and the last term L, that is equal to what, 29. लास्ट टर्म इज 29 एंड सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स, हमें पता नहीं कितने टर्म्स हैं, मतलब एस एन इज इक्वल टू 150. तो स्टूडेंट्स आपको फार्मूला तो पता ही है कि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस एल. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अगर दिया है तो एस एन इज इक्वल टू 150 n/2 एंड a प्लस एल मीन्स -4 प्लस 29. दिस विल बी, इसको इधर लाओ तो 150 इंटू 2 is equal to 25n. okay, so n is equal to 150 into 2 by 25. इसको काट दीजिए 6 टाइम्स, n की वैल्यू आ गई 12. तो AP में कुल कितने टर्म्स हैं, इसमें 12 टर्म्स हैं. अब आपसे पूछा है फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस. फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, an is equal to a plus n minus 1 d. ठीक है, an is last term here, an is the last term here and last term is 29. AP का जो last term है वो 29 है, तो 29 is equal to -4 plus 12 minus 1 d. यहां से क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो 29 plus 4 is equal to 11d. तो 33 is equal to 11d. इसको कैंसिल कर दीजिए, d is equal to 3. This is the common difference. So common difference is equal to 3. This is your final answer. And this is the way how you can solve it. Next is, if इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, if Sn the sum of first n terms of the AP is given by, देखिए Sn दिया हुआ है, Sn is equal to 3n square minus 4n, then find its nth term. तो सिंपली मैंने आपको बताया nth टर्म निकालने के लिए n की जगह n-1 रखेंगे, ठीक है ना, और Sn-1 निकाल लेंगे. ठीक है, Sn-1 निकाल लेंगे, ठीक, Sn-1 निकाल लेंगे. तो an इज इक्वल टू Sn-1, इसमें वैल्यू रख करके nth टर्म ऑफ द गिवन AP आपको निकालना है. मैं इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि एक और बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो ये सिंपल आप इसको कर सकते हैं. चलिए देखिए, ये भी बहुत मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है भाई, AP का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको. फर्स्ट टर्म AP का दिया हुआ है, सेम जैसे मैंने बताया आपको. अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे हम निकालेंगे. तो लेट an be its फर्स्ट नेगेटिव टर्म. लेट an be its फर्स्ट नेगेटिव टर्म. मान लेते हैं an इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, ठीक. तो अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म, it implies that an will be less than 0. So that is a plus n-1 d is less than 0. यही होगा. इसमें फर्स्ट टर्म आपका कितना है, a है, that is 20, एंड सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, 77/4 हो जाएगा, ठीक, सेकेंड टर्म. ठीक है, a1 20, a2 77. तो कॉमन डिफरेंस d निकाल लो. कॉमन डिफरेंस d कैसे निकलेगा, 77/4 -a2 - a1 ना, ठीक. तो ये हो जाएगा 77 -
24 जा 80 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू -3/4 रख दीजिए यहाँ पर फार्मूले में। क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 20 प्लस n, n हमको पता नहीं है, n-1 d की जगह -3/4 लेस देन 0। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे 20 माइनस, देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दिस विल बी -3n/4 एंड दिस विल बी प्लस, ये +3/4 हो जाएगा लेस देन 0। अच्छा अब इसको आप 20 प्लस 3/4 इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है, और -3n/4 लेस देन 0 इसको ऐसे रखिए। ये 20 इंटू 4 80, 80 प्लस 3 83, 83/4, 83/4 -3n/4। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 3n/4 दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जैसा यूजुअली मैंने अभी किया था। तो ये इनइक्वालिटी जो है जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन अब ये इधर किधर ओपन हो गया, ठीक है, ये किधर 3n/4 की तरफ ओपन हो गया, ये इसे गया। अब आप इसको क्या लिखेंगे कि 3n/4, देखो एरो इधर ओपन हो रहा है ना तो हम इधर ही ओपन रखेंगे। 83/4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इट मीन्स 3n will be greater than 83 and n will be greater than 83/3। तो 83/3 इसको आपका क्या हो जाएगा, this will be n is greater than 27 whole 2/3, ओके 27 whole 2/3। तो 27th टर्म से जस्ट ग्रेटर टर्म कौन सा आएगा, 28th टर्म आएगा। तो हिंस 28th term of given AP is its first negative term। आपको इतना लिखना है तब जाकर के आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन इफ यू रिक्वायर्ड। ओके चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे और ही बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज -32। देखिए 9th टर्म ऑफ एन एपी इज -32। पढ़िए क्वेश्चन को, 9th टर्म ऑफ एन एपी इज -32 एंड द सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म इज -94। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है कोई बात नहीं है, 9th टर्म A9 इज इक्वल टू कितना, -32। अच्छा फिर क्या कर रहा है, सम ऑफ इट्स 11 एंड 13th टर्म, 11th टर्म एंड 13th टर्म। देखिए अब यहाँ पर आप S11 और S13 लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आपका आंसर नहीं आएगा क्योंकि वो गलत है। ये सम ऑफ 11th एंड 13th टर्म बोला है, दैट इज इक्वल टू -94। अच्छा 9th टर्म एपी का क्या होगा, a plus 8d is equal to -32। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a 11th टर्म एपी का क्या होगा, दैट विल बी a plus 10d and plus 13th टर्म a plus 12d is equal to -94। दिस विल बी फर्दर 2a, ये कितना हो जाएगा 2a plus 22d is equal to -94। 2 कॉमन ले लेते हैं तो a plus 11d is equal to -94। काट दीजिए इसको, कैंसिल कर दीजिए, -47 हो जाएगा। a plus 11d is equal to -47। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना 2। तो फ्रॉम 1 and 2, देखिए फ्रॉम 1 and 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। a plus 11d is equal to -47 and a plus 8d is equal to -32। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज, दिस इज कैंसिल्ड। 11 minus 8 is 3d एंड यहां से आपको मिल जाएगा -15। सो d will be equal to -15 upon 3, -15 upon 3 will be equal to -5। this is your answer and I hope you understood this। let us move to next question। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप आपका डाउट अब यहाँ से शुरू हो गया क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा डाउट होता है। बाकी जो अभी तक चल रहा था वो तो मैं थोड़ा सा फील करा रहा था कि एपी क्या होता है ना। देखिए मेन तो आपको प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो मैं बता रहा हूँ कि आज के बाद नहीं होगी, ठीक है ना। ठीक, अच्छा सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को।
क्वेश्चन में दिया है पीएथ टर्म, पीएथ टर्म मतलब, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने क्या बताया था कि nth टर्म को हम an से भी लिख सकते हैं, tn से भी लिख सकते हैं, तो pth टर्म को हम tp से लिख रहे हैं, ठीक है। pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p। अच्छा, आपको क्या निकालना है, p प्लस qth टर्म। भाई nth टर्म ऑफ द ap होता है a प्लस n माइनस वन डी, ठीक है। तो p प्लस qth टर्म क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, a प्लस p प्लस q माइनस वन डी ही हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। तो हमें प्रूव करना है कि p प्लस qth टर्म ऑफ द गिवन ap इज जीरो। करेंगे भाई, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए, ठीक है, a और d के लिए, मतलब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इसमें हमको क्या मिलने वाला है। pth टर्म मीन्स a प्लस p माइनस वन डी इज इक्वल टू q। अच्छा, qth टर्म क्या है, qth टर्म इज a प्लस q माइनस वन डी इज इक्वल टू p। अच्छा, लेट अस से इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। अच्छा, सब्ट्रैक्टिंग, हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। देखिए सब्ट्रैक्टिंग 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 फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड को ऊपर लिखिए, a प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू p, एंड यहां से a प्लस p माइनस वन डी इज इक्वल टू q। सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज होगा, ये तो गए। अब यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, q इंटू डी क्यू डी माइनस वन इंटू डी डी। अच्छा, माइनस p इंटू डी पी डी एंड माइनस माइनस प्लस वन डी, तो डी इधर से क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा। अच्छा, ये देखो d से d कैंसिल हुआ क्या, बिल्कुल कैंसिल हुआ। अच्छा, तो ये क्यू डी माइनस पी डी, या माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस पी माइनस क्यू डी हो गया, और p माइनस क्यू यहां से है, ये देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। d की वैल्यू आपको क्या मिली, माइनस वन मिली। व्हाट इज वैल्यू ऑफ d, दैट इज माइनस वन। d वैल्यू ऑफ d इज माइनस वन। अब आप क्या करिए, अब आप किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए और a की वैल्यू निकालिए, है ना, a की वैल्यू निकालिए, रख दीजिए, पुटिंग d इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन वन, वन में रख देते हैं, वन में क्या है, यहां पर है, तो ये हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन, ए प्लस पी माइनस वन डी। हाँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना, देखिए a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू है, तो रख दो यहां पर क्या रखोगे, a प्लस पी माइनस वन डी, डी की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन, और इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से ये देखो माइनस वन इंटू पी माइनस पी, और माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। तो a की वैल्यू, p को उधर ले जाओगे पॉजिटिव, p प्लस क्यू हो जाएगा, और वन उधर गया तो निगेटिव, a की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। आपको मिली a की वैल्यू, आपको मिली d की वैल्यू, दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो आपको चाहिए था। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था p प्लस क्यूथ टर्म ऑफ द एपी ना, फर्स्ट टर्म की जगह रख दो, क्या आया हुआ है, यू हैव गॉट a इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस वन, तो p प्लस क्यू माइनस वन, एंड प्लस यहां से p प्लस क्यू माइनस वन, डी की जगह माइनस वन रख दो, सॉल्व इट, p प्लस क्यू माइनस वन, एंड प्लस ये यहां से देखो साइन सबका बदलेगा, माइनस p हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये देखो गए सब, है ना, क्या आ गया, जीरो आ गया। तो p प्लस क्यूथ टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो इट इज बेटर टू राइट दिस, कि आपको करना क्या है, पहले आप उसको समझ जाइए, निकालना क्या है वो इस पर डिपेंड करता है जो गिवन है। अब बेटा मैं आपको बता दूं कि सेम पैटर्न से बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सेम यही स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करने वाले हैं, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। डिवाइड 32 into 4 parts which are 4 terms of an AP such that the product of first and fourth term is
टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म एज 7:15। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार देखिए 10 डेज का गैप दिया है, पेपर थोड़ा सा टफ आ सकता है, टफ आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन उठा करके देगा स्टैंडर्ड वालों के लिए। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स आ गया ना। देखिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑलरेडी कि 4 पार्ट्स, अगर 4 नंबर्स आर इन एपी तो हम क्या चूज करेंगे। मैंने बताया कि इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट फॉर अस टू चूज, तो इट इज, so let us consider, let required parts, let required parts, let required parts be a minus 3d, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। यही 4 पार्ट्स हमने कंसीडर कर लिया कि है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें उसका सम, डिवाइड 34 इन 4 पार्ट्स ना, तो सम जो होगा a minus 3d and plus a minus d plus a plus d and plus a plus 3d, सबका सम किसके इक्वल, 32 के इक्वल। अब ये क्यों चूज किया जाता है ये आप देख लो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। d is cancelled with d, 3d is cancelled with 3d, तो 4a is equal to 32 and you will get directly the value of a, that will be equal to 8। तो a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स कितनी, 8 आ गई। अब देखिए सेकंड कंडीशन, ये क्या था, केस फर्स्ट था, दिस वाज केस फर्स्ट। अभी हम देखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ना सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब a minus 3d एंड a plus 3d टू दी, इस टू दी मतलब यहां पर रेशियो कर रहा है कि इस टू दी प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड इज a माइनस डी एंड a प्लस डी, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, दिस रेशियो इज 7/15, this ratio is 7/15। now students you can apply identity here, a minus b, a plus b, that is a square minus ये हो जाएगा 9d square एंड ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। यहां से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इधर, तो 15 a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहां से 15 a स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, 15 a स्क्वायर माइनस 59 जा 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 8a स्क्वायर और माइनस 7d, इसको उधर ले जाओ प्लस 135d स्क्वायर, ठीक है ना, इतना d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 128, दिस विल बी 128d स्क्वायर। यहां से इसको काटेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, काट दीजिए डायरेक्ट, 8 1 जा 8, ये आ गया 16d स्क्वायर, है ना, 16d स्क्वायर। तो देखिए जब यहां से आप a की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है ना, a की वैल्यू रख दो ना, a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी आई, a आई है, तो ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 16d स्क्वायर आया, तो इट इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज 64, 8 की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू 8, 64 इज इक्वल टू 16d स्क्वायर, ये काट दो कितना आ गया 4 आ गया, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ पर वो स्टूडेंट जो 80 या 79 या मतलब फुल मार्क्स का टारगेट रखे हैं वो यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, नहीं तो एक नंबर आपका यहाँ से जाने वाला है। यहाँ पर आपको प्लस माइनस 2 दोनों लेना है क्योंकि एपी असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में चलेगी, ठीक है। तो अब आप रख दीजिए क्या आपने कंसीडर किया था, a माइनस 3d, है ना, a माइनस 3d आपने कंसीडर किया था। आप वैल्यू निकालिए यहां से, देखिए वैल्यू निकाल लीजिए, a माइनस 3d है ना, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d और रख दीजिए इसमें, ठीक है ना, रख दीजिए, वहीं आपकी वैल्यूज आ जाएंगे। a की वैल्यू 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 3 एंड 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, ठीक है ना। अच्छा यहां देखिए हमने गलत कर दिया ना, ये गलत हो गया, ठीक है। यहां पर आपको गलती नहीं करनी है,
हम 2 रख रहे हैं ना, 3 2 जा, ठीक है, तो 8 - 2, 8 + 2 एंड 8 + 3 × 2। आपके जो नंबर्स आए वो कितने आ गए, 2 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया और 14 आ गया। तो 2, 6, 10 एंड 14 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। 14 ये भी है, ठीक है, ये देखिए ये भी नंबर आएगा, और इसका जब -2 रखेंगे तो 14, 10, 6 और 2 ये भी आपका आंसर आएगा। आपको दोनों लिखना है अगर आपको 100% मार्क्स इसमें पाना है तो। Okay, so students, now we have to solve this question. The sum of the first n terms of an AP is, sum of first n terms of an AP is given. Find the nth term and hence you have to find the 25th term. तो let us see कैसे करेंगे इसको, solution देखते हैं। Okay, what is given? Sum of n terms is 3n square by 2 plus 5n by 2. Okay, आपको क्या करना है, Sn-1 निकालना है। Sn-1 कैसे निकालेंगे? You will substitute n-1 in place of n by 2 plus 5 n-1 by 2. अच्छा, then it will be n square plus 1 minus 2n by 2 plus 5n minus 5 by 2. Okay, now further you can solve। देखिए न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n और डिनोमिनेटर सबका दोनों का 2 है ना, तो 2 आ जाएगा एलसीएम। 5n minus 5, सॉल्व इट। 3n स्क्वायर minus 6n plus 5n, this will be minus n, minus 3 plus minus 5 plus 3, that will be minus 2 upon 2। ये आपका इतना सोल्यूशन के बाद आया, ठीक है। इसको भी एक स्टेप और लिखिए, तो 3n स्क्वायर प्लस 5n by 2 लिख सकते हैं। Now you can calculate nth term of the AP applying the formula Sn इसी में रख दीजिए वैल्यूज को। Sn कितना आया था, 3n स्क्वायर प्लस 5n by 2 एंड माइनस Sn-1 कितना आया है, दैट इज 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ठीक, बाई 2। दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, 2 ही है। ओके, रख देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस n माइनस माइनस प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू, देखो 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5n प्लस n दैट इज 3n प्लस 2 अपॉन 2। ओके, ये सॉरी नॉट 3n, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5n प्लस n 6n प्लस 2 अपॉन 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 3n प्लस 1। ये आ जाएगा कितना, 3n प्लस 1, ठीक है। कैसे, 2 कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट 3n प्लस 1 एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, ये तो आपका आ गया nth term of the AP, that is 3n plus 1. Now what you have to find, you have to find 25th term of the given AP. So 25th term of the given AP will be 3 into 25 plus 1 is equal to 76. This is your answer. This is your answer. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखिए, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP up to the n terms, up to the n terms। अच्छा, इसको देखिए, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, है ना, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो हमको कुछ और इंटरेस्टिंग मिलेगा, हमको कुछ और इंटरेस्टिंग मिलेगा। आप देख रहे हो 1 1 1, कहाँ तक, n टर्म्स तक, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक मिल रहा है, n टर्म्स तक मिलेगा। मतलब जहां तक AP जाएगा वहां तक 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आपको मिलता जाएगा। तो एक तो आपका ये AP हो गया, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है, ये देखिए यहां माइनस लीजिए, माइनस लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो 1/n, ठीक है, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस 2/n प्लस 3/n एंड सो ऑन। ये भी हमको कहां तक मिलेगा, n टर्म्स तक मिलेगा। अब देखो ये 2 AP हो गया, दोनों का सम अलग अलग निकाल लो। इसका देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 को 10 टाइम ऐड करो 10 हो जाएगा, 100 टाइम ऐड करिए 100 हो जाएगा, 1000 टाइम ऐड करिए
1000 हो जाएगा, तो n टाइम ऐड करेंगे n हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये आपको एपी मिला 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n, कहां तक, n टर्म्स तक। तो इसका सम निकाल लेते हैं, इसका सम निकाल लेते हैं। इसका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a, ओके, n/2 2, ठीक है, 2a प्लस n-1d, यही अप्लाई कर देंगे। तो Sn ये जो सम निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, n/2 n/2 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1/n है, और प्लस n-1, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट करोगे 1/n ही आएगा, तो 1/n रख दो, ठीक है। ये हो गया आपका n/2, ये हो गया 2/n और 1/n, n इंटू 1/n करोगे n/n ही मिलेगा, तो ये हो गया आपका +1 और -1/n। इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करिए तो n/2 2/n और -1/n, दैट विल बी इक्वल टू 1/n प्लस 1। ये इसका तो आ गया 1/n और +1 कर दो, तो ये आ गया आपका n/2 और n इंटू 1, तो n प्लस 1/2 आ गया, n प्लस 1/n आ गया, ये n से n कैंसिल, n प्लस 1/2, दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स यहां पर जो आपको मिला वो ये मिला कि इसका सम, इस एपी का सम n हो जाएगा, और इस एपी का सम कितना आ जाएगा आपका n प्लस 1/2। सॉल्व इट, तो n 2 इंटू n कितना हो गया, 2n हो गया, माइनस n प्लस 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 2n माइनस n माइनस 1 अपॉन 2, so your answer will be n minus 1/2 and this will be your final answer, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24, सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। बेसिक के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक के लिए जरूर। स्टैंडर्ड भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड में नहीं दे सकता है, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। देखिए, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, आपको पता चल गया होगा कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैंने एक कर दिया है। And the sum of its sixth and 10th terms is 44, find the sum of its first 10 terms। ठीक है, कोई बात नहीं है। पहला कंडीशन क्या है, केस फर्स्ट कह रहा है, केस फर्स्ट में है सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ना, तो T4 प्लस T8 ये किसके इक्वल है, दैट इज 24। तो T4 मतलब A प्लस 3D एंड T8 मीन्स A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। सॉल्व इट, यू विल गेट 2A plus 7 3 10, 7 3 10, 10d is equal to 24, ठीक है। we can take out 2 common, this will be a plus 5d is equal to 24, कैंसिल हो जाएगा, 12 बचेगा, तो a plus 5d is equal to 12, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड में भी हो सकता है यार, उसमें आपका बेसिक में भी आ सकता है, पेपर कभी सिंपल कभी थोड़ा सा स्ट्रांग दे देता है ना, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी। तो क्वेश्चन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। केस 2, केस 2 में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज इक्वल टू 44। इसको भी जरा सॉल्व करिए, a प्लस 5d एंड प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ये हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। यहां से भी 2 कॉमन लीजिए, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 22। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जब ऐसा लिखेंगे तो सेकेंड वाले इक्वेशन को हम ऊपर रखेंगे और फर्स्ट वाले इक्वेशन को नीचे रखेंगे, ठीक है, ओके। और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो गया a से a, 7 माइनस 5 दैट इज 2d, 2d इज इक्वल टू 10, देन d इज इक्वल टू 5। इसको किसी एक में रख दीजिए, फर्स्ट में रखिए,
पुटिंग d is equal to 5 in equation 1, इसमें रख दो तो a plus d 5 into d कितना है, d is 5 is equal to 12, तो a is equal to 12 minus 25 is equal to minus 13, वैल्यू ऑफ a is minus 13। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स S10 है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी S10, दैट विल बी S10, तो S10 इज इक्वल टू 10 by 2, ओके 2a प्लस 10 minus 1d, इस फार्मूले में रख दीजिए, जहां n था वहां हमने क्या रख दिया, 10 रख दिया, क्योंकि आपको सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, तो दैट विल बी 5 एंड 2 इंटू ए की वैल्यू आई है, कितनी आई है, -13, ब्रैकेट अप्लाई करना मत भूलिएगा, 9 इंटू डी कितना आया 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 and -26 plus 45, okay, this will be equal to 5 into 15 minus 6, that is 9, and 3 minus 2 1, 19 5s are 95, this will be your answer, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, you can take screenshot if required। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड इट्स 25th टर्म। आई होप आप इसको कर लेंगे, ठीक है, आई होप यू कैन सॉल्व इट। कैसे, मैं थोड़ा सा स्टेप आपको पकड़ा देता हूं, फिर आप सॉल्व करिएगा। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स मीन्स S14 is given, that is 1505, and first term that is a is equal to 10, ये दिया हुआ है, आपको 25th टर्म निकालना है, a दिया हुआ है, आप यहां से d निकाल लेंगे, ठीक है, d निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, S14 will be equal to 14 by 2, 2 into a plus 14 minus 1 d, that is equal to 1505, इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा, 7 बचा, तो 7 2 इंटू ए की वैल्यू रखिए 10 प्लस 13 इंटू डी पता नहीं है, इज इक्वल टू 1505, ठीक है, इसको ये हो जाएगा 20 प्लस 13 डी इज इक्वल टू 1505, इधर आकर के 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 आएगा, 7 1 जा 7 5 जा 215, तो ये 13d इज इक्वल टू 215 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 195, तो d इज इक्वल टू 195 अपॉन 13, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65 है ना, 13 5 जा 65, अच्छा d की वैल्यू आ गई 15, जब d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू दी हुई है, तो यू कैन फाइंड इट्स 25th टर्म, T25 इज इक्वल टू a प्लस 24 d, ठीक है, इसमें वैल्यू रख करके आपको आंसर निकालना है, निकाल ही देते हैं, नहीं कहोगे कि सर थोड़ा सा आप क्यों छोड़ दिए, a की वैल्यू 10 प्लस 24 इंटू 15, अब आप इसको सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, ठीक। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man arranges to pay off debt of rupees 36,000 by 14 monthly installments which form an arithmetic series. When 30 of the installments are paid, he dies leaving one third of the debt unpaid. Find the value of the first installment. देखिए पहला इंस्टॉलमेंट इसका क्या था, यही आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको कुछ पता है नहीं इसमें, बस क्या मालूम है कि वो आदमी, ठीक है, क्या किया है, 36,000 का लोन लिया और उसको 40 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि S40 जो होगा उसका, वो किसके इक्वल होगा, 36,000 के इक्वल होगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 40 by 2, ठीक है, 2a प्लस 40 माइनस 1 d हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 36,000, देखो ये इसको कैंसिल करो 20 एंड 2a प्लस 39d
इज इक्वल टू 36,000 और 20 इधर इसको डिवाइड करेगा, ये आपका आया 1800 रुपीज। ठीक है, तो 2a प्लस 39d, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो इससे बन जाएगा पहला एक इक्वेशन। दूसरा देखो कि when 30 of the installment are paid he dies leaving 1/3, है ना, 1/3। तो अमाउंट पेड अगर हमको निकालना हो कि अमाउंट पेड बाय हिम, ठीक है ना, अमाउंट पेड बाय हिम, तो वो कितना होगा 1 माइनस 1/3 क्या है, बाकी है ना, तो इसका मतलब उसने 2/3 जो है इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दिया है टोटल अमाउंट का। तो मनी पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, वो कितना निकाल लेंगे, है ना, कितना 2/3 ऑफ 36,000 मीन टू से 24,000, मतलब उसने 24,000 एस 30 जो दिया उसने वो कितना दिया 24,000 दिया। एक इक्वेशन यहां से बना लो, 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1d is equal to 24,000. Okay, I hope you understood this. You can reduce this. 2a plus 29d is equal to हो जाएगा 24,000 divided by 15। ठीक है, इसको काटिए, सिंप्लीफाई करिए, 15 1 जा 15 एंड 15 6 जा 90 बचेगा। ठीक है ना, ओके, तो ये आ गया आपका 1600। 2a plus 29d is equal to 1600। Let us say this is equation number 2। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। इसको सॉल्व करते हैं, we will solve this। इसी को सॉल्व करिए जरा। सॉल्व करने के बाद दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा। पहला इक्वेशन था 2a plus 39d is equal to 1800 and second equation is 2a plus 29d is equal to 1600। now reduce this। okay, ये क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, कैंसिल, ये 10d is equal to 200, 10d is equal to 200, so d is equal to 200 by 10, that is equal to 20। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 20 का आ गया। पुटिंग d is equal to 20 in any of the equation, ना तो हम किस में रख दें, सेकंड में रख दें या फर्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2a plus 29d is equal to 1600, यहां से 2a plus 29 into d की वैल्यू रख दो 20 is equal to 1600, so 2a plus 0 2 9 जा 18 2 2 जा 4 1 5 580 is equal to 1600। इसको उस तरफ ले जाइए, तो 1600 माइनस 580, 1600 माइनस 580 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा 0 10 माइनस 8 2 एंड 15 माइनस 5 10, तो 1020। okay, then a will be equal to 1020 divided by 2 is equal to 510। so you will write that, so first installment, value of first installment लिखोगे कि so value of first installment was rupees 510 and this is your answer। okay, you can take a screenshot, otherwise we will move further। let us move to next question। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये 2024 के एक सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेसिक में भी आ सकता है, स्टैंडर्ड में भी, कहीं केस स्टडी, कहीं क्वेश्चन में। ठीक है ना, 3 मार्क या 5 मार्क में। तो 200 logs are stacked, ये log of wood एग्जाम्पल दिया हुआ है ना फिगर में। तो 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on। मतलब क्या है कि आप देखते होंगे कि जहां लकड़ी के टुकड़े रखे होंगे, मतलब लकड़ियां रखी जाती होंगी, वो इस तरीके से, मतलब सबसे ज्यादा बॉटम में, उसके ऊपर थोड़ा सा कम, उसके ऊपर थोड़ा सा कम, इस तरीके से वो ढेर लगाते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed and how many logs are in the top row,
है ना, इन द टॉप रो में कितने लॉग्स हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं यहां पर कि क्लियरली given situation will form an AP, will form an AP that is क्या होगा वो 20, 19, 18 एंड सो ऑन, है ना। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कितना, Sn इज इक्वल टू 200 लॉग्स ऑफ वुड है। टोटल कितने लॉग्स ऑफ वुड है, 200 लॉग्स ऑफ वुड है। हमको n पता नहीं कि कितने उसमें स्टैक्ड है, ठीक है, सॉरी मतलब उसमें कितने रोज हैं। तो नंबर ऑफ रोज हमको पहले निकालना है, तो n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 200 इसमें रखे, ठीक है। तो फिर n/2 ये हो जाएगा 2 इंटू a मतलब 20 प्लस n-1 d भी हमको क्या है, d हमारा है -1, d इज -1 इज इक्वल टू 200। तो ये n 40 प्लस ये देखो -1 इंटू n माइनस n एंड माइनस माइनस प्लस 1 और ये 2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। देन दिस विल बी 40n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पर 1 भी था, हमने 1 नहीं लिखा, इसको लिखते हैं, ठीक। देखिए अब ये क्या हो जाएगा 40, यहां एक स्टेप और लिखिए, n ये आ जाएगा 41 माइनस n इज इक्वल टू 400। इसको जरा सॉल्व करिए तो दिस विल बी इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। सबको उस तरफ ले जाइए, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, n स्क्वायर 41 निगेटिव हो जाएगा एंड 400 उधर पॉजिटिव मिलेगा आपको, तो 400 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहां पर क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए कितना 25 और 16, 25 एंड 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे कि n स्क्वायर माइनस 25 एंड प्लस 16 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 25n एंड माइनस 16n प्लस 400, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 एंड माइनस 16 n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब n माइनस 25 इन वन ब्रैकेट एंड n माइनस 16 इन अनदर। तो यहाँ पर n की 2 वैल्यू आ गई है ना, n की 2 वैल्यू आ गई। अब आप ऐसे समझिए कि अगर उसमें जो नंबर ऑफ रोज हों अगर हम 25 ले लें तो 16 और 25 दोनों का सम कैसे 200 हो सकता है ना। इसका मतलब 16 रो के बाद वहां पर रोज नहीं है, तो हम जो लिस्ट पॉसिबल यहां पर वैल्यू होगी वो क्या लेंगे, वी विल टेक n इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इसमें आपका हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो यहां पर पहली तो जो आपकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, इसमें आप इसको क्या लेंगे, इसको लेंगे 16, ठीक है, 16 रोज। अब 16 तो n आ गया आपका 16 रोज, ठीक। उसके बाद ठीक है T16 लास्ट में पूछा है ना, तो T16 a प्लस 15 d इसमें रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू ऑफ a इज 20, वैल्यू ऑफ a इज 20 प्लस 15 इंटू d इज व्हाट -1, ओके। सो दिस विल बी 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, दिस इज योर आंसर। ये चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये केस स्टडी में देता है, ठीक है, ये केस स्टडी में देता है और इससे रिलेटेड कई एक स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग तैयार करिएगा, ठीक है। तो इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. Total 10 potatoes line में है। पहला पोटैटो यहाँ पर, दूसरा यहाँ, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, इस तरीके से टोटल 10 पोटैटोज यहाँ तक हैं। इसके बीच का डिस्टेंस 5,
फिर दो पोटैटोज के बीच में डिस्टेंस 3 दे रहा है, ठीक है, 3 दे रहा है। अब देखो यहां पर करना क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, वो यहां से स्टार्ट कर रहा है बकेट से, ठीक है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, पहला पोटैटो यहां गया, उठाया, वापस आया, ठीक है, फिर यहां से दौड़ा, वो दूसरे पोटैटो के पास गया, उसको उठाया, इसमें प्लेस किया, तीसरे के गया पास गया, यहां उठाया, बकेट में डाल दिया, फिर गया, उठाया, ही कंटिन्यूज टिल 10 पोटैटोज, ठीक है ना। तो यही इसका गेम है, या आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, द टोटल, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपटीटर क्या हो जाएगा, कंपटीटर दैट विल बी इक्वल टू इज, लिखेंगे कितना, वो होगा, एक पहला गया फिर वापस आई, ठीक है, तो 5 + 5 10, ठीक है, प्लस 5 + 3 दूसरे पोटैटो के लिए कितना, 5 + 3 8 8 2 जा 16, फिर कितना 5 + 3 + 3 3 + 3 + 6 3 + 3 6 6 + 5 11 11 2 जा 22। तो सी कंटिन्यूज टिल 10 टर्म्स, है ना, इसी का हमें सम निकालना है, S10 निकालना है। तो S10 विल बी इक्वल टू 10/2 2a + n-1, n-1 मतलब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 10 रख दीजिए, 10 - 1 d। अब इसी में वैल्यू ये 5 हो गया, 2 × a फर्स्ट टर्म दैट इज 10 प्लस 9 × d, d कितना है 6 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो 5 × 20 + 54 दैट इज इक्वल टू 5 × 74 that is 5 4s are 20 5 7s are 35 and 2 that is 37 meters. So total distance he traveled, what is the total distance the competitor has to run is 370 meters. तो देखिए ये इसमें केस स्टडी भी दे सकता है, केस स्टडी में क्या पहले पूछ लेगा कि एपी कितना फॉर्म करेगा, एपी का पार्टिकुलर टर्न कितना होगा, या कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेसिक में दोनों में ये आता है, ठीक है, ओके।